Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine. Today 15th of May 2020 اور آج ہم کلاس 4th سبجیکٹ انگلش سے لیسن نمبر 3 لداخ دا لینڈ آف پاسز پڑھنے جا رہے ہیں. چونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ آدھی لیسن پڑھی ہے. آج ہم اسی لیسن کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 28 نکالیں. فرسٹ آف آل ہم لاؤڈ ریڈنگ کریں گے اس سبق کی اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا اور اس کے بعد ہم اس کی میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. The world's largest glacier, called Siachen, adds to the beauty of this amazing land. This glacier is 72 kilometers long. This decreases temperatures in Ladakh. The temperature in Dras dips to minus 50 degrees Celsius. Though a mountainous region, one can find many roads between the mountains, which makes Ladakh the land of passes. Let's learn about two specialties of Ladakh, Gurgur and monasteries. Ladakh's food is adapted to the harsh climatic conditions of the place. Gurgur is famous tea, a unique drink without which the trip to Ladakh is incomplete. Gurgur chai is made with yak butter. It is added to boiling water mixed with salt, soda, milk and tea leaves called zarcha. Butter is essential to maintain the body temperature. When drinking buttered tea, wait until tea cools a bit. If one wants to have more tea, it is customary to leave some tea in the bowl. If the bowl is empty, it means one does not want to have more. A monastery is a place where monks live and worship. The Buddhist monasteries are centers of worship and religious teachings in Ladakh, which are also popular tourist spots. The monasteries are located at isolated places, which make them peaceful sites to visit. The monasteries are also called gumpas. Sculptures and scriptures add to the beauty of these monasteries. Some of the famous monasteries in Ladakh are Hems Monastery, Alchi Gumpa, Bardhan Monastery, Diskut and Handar Gumpa, Karsha Monastery, etc. The monasteries are an outstanding example of architecture. It is really a treat to visit them. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لداخ کے بارے ہم نے تھوڑی بہت انفارمیشن حاصل کی تھی پچھلے ویڈیو میں. ہم نے پڑھا تھا کہ لداخ جو ہے یہ ایک یونین ٹیریٹوری ہے، ایک خوبصورت جگہ ہے جو سطح سمندر سے 3513
मीटर बुलंदी पर वाक़ा है और इसमें जो बड़े पहाड़ आते हैं वो हमने पढ़े थे, ज़ंस्कार, लद्दाख, कराकोरम जो पहाड़ आते हैं उसके बारे हमने पढ़ा था। तो इसके हाइट्स के बारे हमने पढ़ा था कि 2500 मीटर्स जो है ये इसकी हाइट है, से लेकर 7500 मीटर्स तक इसकी हाइट है। तो और हमने इसके बारे पढ़ा था कि ये जो वादी है, ये इसके जो पहाड़ हैं ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। आज हम इससे आगे समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया का, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड सियाचिन एड्स टू द ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग लैंड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो लद्दाख में पाया जाता है। ग्लेशियर यानी बर्फ का बड़ा तूदा, तो उसका जो नाम है वो सियाचिन है। ये जो है ये एक जो ब्यूटी है, ब्यूटी में इजाफा करता है, खूबसूरती में इजाफा करता है। दिस ग्लेशियर इज 72 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये जो ग्लेशियर है लद्दाख में, ये जो ग्लेशियर है ये 72 किलोमीटर जो है तक फैला हुआ है, 72 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिस डिक्रीज टेम्परेचर्स इन लद्दाख। लद्दाख में टेम्परेचर जो दर्जे हरारत है वो कम होने की वजह यही सियाचिन ग्लेशियर है। द टेम्परेचर इज इन लद्दाख द्रास डिप्स टू -50 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ का जो दर्जे हरारत है ये -50 डिग्री तक कम हो जाता है। दो ए माउंटेनियस रीजन, one can find many roads between the mountains which makes Ladakh the land of passes. तो इस लद्दाख के पहाड़ों में जो बहुत सारे पहाड़ हैं, इसमें लद्दाख जाने के लिए बहुत सारे जो सड़क हैं वो इख्तियार कर सकता है, इसीलिए इसको द लैंड ऑफ पासेस कहा गया है। Let's learn about two specialties of Ladakh, Gurgur and monasteries. अब हम लद्दाख की दो स्पेशलिटीज यानी दो खुसूसियात, दो खासियत के बारे में जानना चाहते हैं। अब जानेंगे हम, एक गुरगुर और दूसरा मोनास्ट्रीज। Ladakh's food is adapted to the harsh climatic conditions of the place. लद्दाख में जो भी गुज़ा खाई जाती है वो वहाँ के मौसम के मुताबिक खाई जाती है। वहाँ का मौसम जो है ये ठंडा है, इसलिए वहाँ गर्म चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं। गुरगुर इज ए फेमस टी, ए यूनिक ड्रिंक विदाउट विच द ट्रिप टू लद्दाख इज इनकम्प्लीट। वहाँ की एक मशहूर चाय है जिसका नाम गुरगुर है। जो भी आदमी, जो भी टूरिस्ट लद्दाख का सफ़र करेगा, अगर वो इस चाय को वहाँ नहीं पिएगा तो उसका वो जो वहाँ का जो चक्कर होगा वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि ये वहाँ की बहुत ही मशहूर चाय है। गुरगुर चाय इज़ मेड विथ याक बटर। जो ये गुरगुर चाय है, ये याक जो एक जानवर है उससे दूध लेते हैं और फिर माखन बनाते हैं, उससे बनाई जाती है। It is added to boiling water mixed with salt, soda, milk and tea leaves called zarcha. इसको पानी में मिक्स किया जाता है, उसमें सोडा डाला जाता है, साल्ट डाला जाता है, मिल्क डाला जाता है और चाय डाली जाती है। चाय के पत्ते, जिस चाय के पत्तों को जरचा कहा जाता है, डालकर और ये चाय बनाई जाती है। बटर इज एसेंशियल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। चूँकि वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, इसलिए मक्खन वहाँ पे जो है ये बॉडी का टेम्परेचर जो है ये बरकरार रखने में मदद देता
है. When drinking buttered tea, wait until tea cools a bit. जब बटर वाली जो ये चाय होती है, मक्खन वाली ये चाय जो होती है, ये पीने से पहले कुछ देर के लिए ठंडी की जाती है. If one wants to have more tea, अगर कोई आदमी और चाय लेना चाहेगा, it is customary to leave some tea in the bowl. जो इसका कप होगा, जो इसकी प्याली होगी, उसमें थोड़ी सी चाय उसको रखनी होगी. ये वहाँ की रीत है. If the bowl is empty, अगर ये प्याली जो है ये खाली होगी, it means one does not want to have more. इसकी मतलब है कि जो चाय पीने वाला है उसने अपनी चाय की प्याली जो है वो खाली कर दी, अब वो और चाय नहीं लेगा. अब इसकी हम दूसरी स्पेशलिटीज के बारे पढ़ेंगे. A monastery is a place where monks live and worship. मोनेस्ट्री जो इनकी खानकाएं बुद्धिज्म, क्यों, चूँकि डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे लद्दाख में बुद्धिज्म जो है, वहाँ बुद्धिज्म रिलीजन पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ पर मोंक्स रहते हैं और वहाँ पे वो वर्शिप यानी वो इबादत करते हैं. मोंक्स यानी जाहिद, इबादत करने वाले बुद्धिज्म मजहब के. The Buddhist monasteries are centers of worship and religious teachings in Ladakh, which are also popular tourist spots. जो ये मोनेस्ट्रीज होती हैं, जो ये गिरजाघर होते हैं, जो ये खानकाएं होती हैं बुद्धिस्ट्स की, इनमें जो इबादत होती हैं, इबादत के साथ साथ इनमें मज़हब के जो इसबाक हैं, सबक हैं, वो भी सिखाए जाते हैं और ये टूरिस्ट प्लेसेस भी मानी जाती हैं. The monasteries are located at isolated places which make them peaceful sites to visit. जो ये मोनेस्ट्रीज होती हैं ये एक बस्तियों से दूर अलग जगह पर बनाई जाती हैं, अलहदा बनाई जाती हैं, जहाँ पर लोग जाकर शांति से इबादत कर सकते हैं. तो जब वहाँ पर विजिट करते हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं वो वहाँ पे अमन और शांति महसूस करते हैं. The monasteries are also called gumpas. इन मोनेस्ट्रीज को जो हैं इनको गुम्पाज भी कहा जाता है. Sculptures and scriptures add to the beauty of these monasteries. वहाँ पे जो बुत और वहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स यानी वहाँ पे जो बुत पत्थर तराश कर जो बुत बनाकर रखे हैं, जो वहाँ पर उन बिल्डिंग्स पर स्क्रिप्चर्स की लाइनें वर्सेस लिखी हैं या किताबें हैं, वो इन मोनेस्ट्रीज में और भी खूबसूरती में इजाफा करती हैं. Some of the famous monasteries in Ladakh are Hamas Monastery, Alchi Gumpa, Bardhan Monastery, Diskut and Hundar Gumpa, Karsha Monastery etc. यहाँ लद्दाख की जो मशहूर गुम्पास हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, उनके नाम इस तरह हैं: हम्पस मोनेस्ट्री, आलची गुम्पा, बरदान मोनेस्ट्री, डिस्कट एंड हंडर गुम्पा, कर्शा मोनेस्ट्री etc. The monasteries are an outstanding example of architecture. जो ये मोनेस्ट्रीज बनाई गई हैं ये ऐसे तर्ज तरीके से बनाई गई हैं, ये ऐसे फ़न तामीर इनकी की गई है कि ये बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं. इनकी जो तर्ज तामीर है ये बड़ी ही खूबसूरत लगती है. इट इज़ रियली ए ट्रीट टू विजिट देम. यहाँ पर जाना, इन मोनेस्ट्रीज को देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर विजिट करके कि इनकी जो खूबसूरती है, जो इनकी फ़न तामीर है, इन गुम्पाज की देखकर जो लोग हैं ये बड़े ही खुश होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.